Hello everyone, welcome back to my channel. And today we shall discuss about the refraction through the spherical surfaces. आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए इसको पूरा देखें और अगर पसंद आए, समझ आता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन के लिए जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, when light travels from one medium to another it is called the refraction, and whenever there is a change in the medium then the light deviates from its actual path. Now what will be this deviation of the light in case of the spherical surfaces? Spherical surface is a cut part of a spherical body, spherical transparent body, optically transparent body, and if we consider a part of it, a section of it like this, suppose this is a spherical surface like this and we cut a part out of this like this, it is called the spherical surface. And there are two types of the spherical surfaces. One is convex surface and other is concave surface. अगर convex surface की तरफ rarer medium है तब ये कहलाती है convex surface, और अगर surface के बाहर concave surface के बाहर अगर मान लीजिए rarer medium है then it is called the concave surface. Like this is the convex surface and there are some basic few points about the such type of the spherical surfaces. First is ये जो इसका size है, suppose xy, the diameter, it is called the aperture of the spherical surface. इसी surface को अगर हम इसकी spherical nature को complete करते हैं तो उस sphere का जो center होगा, suppose this is C is the center of this sphere, this center C is called the सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट है ये कहलाता है पोल. इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंट्रल पॉइंट है इट इज कॉल्ड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन, इधर भी अगर इसको हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड करें, इधर भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड करें, इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट इज लाइन PC इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर दैट इज PC, दिस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस. PC will be equal to the radius of curvature of the spherical surface. So there are these few fundamental definitions points about the spherical surface. अब इस spherical surface के refraction के लिए ये convex surface हम जैसे consider कर रहे हैं, मान लीजिए इधर refractive index ये mu1 है which is a rarer medium, and this refractive index is mu2 which is a denser medium. Then for the refraction of this light we shall discuss about this refraction. लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी सी बातें. पहली बात, sign convention. Sign convention for the spherical surfaces is all the distances. There are only 2 points. First point is all the distances are measured from pole. The starting point for the measurement of the distances is the pole. Second point is all the distances measured from pole in the direction of the incident rays are positive and in the opposite direction of incident rays are negative. तो ये केवल 2 पॉइंट है about the sign convention for the refraction through the spherical surfaces. इसके अलावा यहाँ पर हम 3 assumptions लेकर के चलते हैं. इन spherical surfaces के refraction के लिए 3 बातें मानेंगे. पहली बात तो ये कि the aperture of the spherical surface is very small. Aperture of the surface is small. It is not a very big surface. It is a small surface. Second point ये कि जितने भी object या image है, object or image is a point object, point image situated on the principal axis. Object is a point object, image is a point image, और point object की point image ही होगी which is situated on the principal axis. और तीसरी बात ये
all the angles made by the incident rays or refracted rays with principal axis or with normal are small angles. All the angles made by the incident rays or the refracted ray with the principal axis or with the normal आर स्मॉल एंगल. ये 3 एजम्पशंस हम लेकर के चलेंगे. एक तरह से ये लिमिटेशंस भी आप लोग कह सकते हैं. यहां पर इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 केस मेन हैं. पहला ये कि रियल इमेज फॉर्मेशन और दूसरा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन. लेट अस कंसीडर एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट. मान लीजिए कोई हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें O. अकॉर्डिंग टू साइन अकॉर्डिंग टू द एजम्पशंस we have assumed that the object is a point object which is situated on the principal axis. तो principal axis पर ये एक point object है. Image formation के लिए जो rules हमने वही follow करने हैं जो already refraction के लिए discuss किए जा चुके हैं कि if the light is going from rarer to denser it will bend towards the normal and if the light is going from denser to rarer it will bend away from the normal. ये 2 basic point ध्यान रखने हैं. तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम कोई भी एक रे कंसीडर करें. फर्स्ट रे हम कंसीडर करें अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है इट विल बी ए नॉर्मल रे एंड फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देयर इज नो डेविएशन ऑफ द लाइट. नॉर्मल रे पासेस एज सच. लेकिन अगर हम कोई और दूसरा ऑब्लिक रे कंसीडर करते हैं, सपोज ये लेट A इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इस A पॉइंट पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हो रही है. तो लाइट क्योंकि रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है इसलिए इट विल डेविएट टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब नॉर्मल क्या होगा? आप जानते हैं कि स्फेरिकल सरफेस या सर्किल के लिए रेडियस सरफेस के ऊपर या सरकमफेरेंस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है. तो इसलिए अगर हम A और C को ज्वाइन करें, ये A और C को यदि ज्वाइन किया जाए, दिस विल बी द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A. हियर A इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो ये लाइन सपोज NC लाइन, this NC line through the point A, it will be the normal at the point of incidence. And according to the refraction, as the light is going from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. तो normal की तरफ bend होकर के ये इस तरह से मान लीजिए इसको I पॉइंट पर कट करती है. तो अब क्योंकि refracted ray, एक refracted ray है ये PCI, दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है ये AI, दोनों ने कहां पर कट किया? I पर. सो I विल बी द इमेज पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट O. O पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज होगा I पॉइंट पर. अब यहां पर ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होगा. इसके अलावा यहां पर ऑब्जेक्ट पर बना हुआ एंगल मान लीजिए ये अल्फा है, इमेज पर बना हुआ एंगल मान लीजिए ये बीटा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना हुआ एंगल ये गामा. अल्फा, बीटा एंड गामा 3 एंगल्स ये हम और एज्यूम कर रहे हैं. इंसिडेंट रे पॉइंट ऑब्जेक्ट पर अल्फा एंगल, आई पॉइंट पर इमेज पॉइंट पर रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. और इसी तरह से ये नॉर्मल जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एंगल सबटेंड कर रहा है गामा. एक नॉर्मल और ड्रॉप करें यहां से A पॉइंट से. सपोज ये हमने कोई नॉर्मल ड्रॉप किया A पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ये नॉर्मल ड्रॉप किया. मान लीजिए इसने यहां पर इसको कट किया सपोज M पॉइंट पर. तो ये AM इज नॉर्मल ऑन द लाइन OI on the principal axis that is. तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले बिल्कुल सिंपल है. देखिए ये इसमें आपने कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है. लाइट अगर रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, दैट्स ऑल. अब रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए इसमें को इतना बेंड करना है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करें. एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो इसलिए ये रियल इमेज फॉर्मेशन है. इट इज रियल इमेज फॉर्मेशन. यहां पर ये रियल इमेज का केस हम पहले डिस्कस कर रहे हैं. तो अब यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे? स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2 upon μ1 relative refractive index of the medium, it equals to the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. Means it will be μ1 sine I will be equal to μ2 sine R. अब अगर एंगल्स स्मॉल है, जैसा कि हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, तो स्मॉल एंगल्स के लिए फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए ये साइन आई अप्रोक्सीमेटली ये होगा आई के इक्वल, इसी तरह से साइन आर ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आर. इट मींस दैट इट विल बी इक्वल टू μ1 आई will be equal to μ2 r. Let it is equation number 1. ये जो इक्वेशन नंबर 1 आया है, ये हर एक केस में ये फर्स्ट स्टेप, एक तरह से ये 2-3 स्टेप का डेरिवेशन है. फर्स्ट स्टेप सबके लिए कॉमन है. आप देखिए इस फर्स्ट स्टेप में हमने कहीं पर भी फिगर का यूज नहीं किया है, इस डायग्राम का कोई यूज ही नहीं हुआ अभी. सिंपली हमने बस स्नेल्स लॉ यूज किया है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the second medium with respect to the first medium, that is μ2 upon μ1 is equal to sin I upon sin R. क्रॉस मल्टीप्लाई किया है स्मॉल एंगल्स के लिए sin I sin R को I और R लेकर के μ1 I is equal to μ2 R. Now values of R1 and R2 will values of I and R will be substituted in terms of alpha, beta and gamma. अब हमारा मेन जो वर्क है वो ये है कि I और R की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की जाएंगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा. तो इसके लिए देखिए I एंगल अगर हम कंसीडर करें तो I एंगल ये जो ट्रायंगल बन रहा है AOC, इस AOC ट्रायंगल के लिए क्योंकि ये AC साइड बाहर की तरफ एक्सटेंड हो रही है तो ये एक्सटीरियर एंगल है. ये जो ट्रायंगल हमारा फॉर्म हो रहा है AOC, इसके लिए I एक्सटीरियर एंगल है, तो इसलिए फॉर ट्रायंगल AOC ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स दैट इज अल्फा एंड गामा. तो इस ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, I will be equal to alpha plus gamma. इसी तरह से अब हम R की वैल्यू देखें, R कहां है, R ये एंगल है इस ट्रायंगल ACI में, ACI ट्रायंगल में R एंगल ये इसके लिए एक इंटीरियर एंगल है, लेकिन इस ट्रायंगल पर एक्सटीरियर एंगल है ये गामा. तो इसलिए यहां पर भी अगर हम यही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाएं फॉर ट्रायंगल ACI ट्रायंगल के लिए अगर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाया जाए तो इसके लिए ये हमारा बनेगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, ये होगा R प्लस बीटा. इसका मीनिंग ये हुआ कि R इज इक्वल टू होगा गामा माइनस बीटा. R विल बी इक्वल टू गामा माइनस बीटा. ये हमारी वैल्यू आएगी R की. दोनों ही वैल्यूज I की और R के एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से यहां पर हम डिटरमिन कर रहे हैं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ I एंड R इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग I एंड R इन इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या बनेगा, ये हो जाएगा μ1 I इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 into R and R is gamma minus beta. This is, let it is equation number 2. अब इसके बाद अगर हम ये अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यूज और कंसीडर करें, उसके लिए ऑलरेडी हम एजम्पशंस में एज्यूम कर ही चुके हैं. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल फॉर्म करते हैं. तो इसलिए स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होगा, फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए अल्फा अप्रोक्सीमेटली tan अल्फा, और tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा हो जाएगा AM अपॉन
एम आई, ए एम अपॉन एम आई। ए एम तो एज इट इज रखें, लेकिन अब क्या है, हमने एज्यूम किया था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अब और दूसरी चीज कि एपर्चर ऑफ द सरफेस इज स्मॉल, तो स्मॉल एपर्चर के लिए ये P and M point will be very close. P and M are very close. So if the distance are measured either from P or from M will be approximately same for small aperture. तो इसलिए ये MI जो है ये approximately कितना हो जाएगा, ये approximately इसको हम ले लेंगे PI के इक्वल। इसी तरह से बीटा ये approximately tan बीटा हो जाएगा फॉर स्मॉल एंगल्स। स्मॉल एंगल्स में tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, मैथमेटिक्स में आप लोग पास पढ़ते हैं ये, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा की वैल्यू हो जाएगी am अपॉन सॉरी अल्फा, अल्फा हमने लिया था तो अल्फा ये mo mo और वो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा po। इसी तरह से tan बीटा के लिए ये होगा am और अपॉन mi which will be approximately equal to am upon pi, and similarly gamma will be approximately equal to tan gamma, और tan gamma की वैल्यू ये होगा उसी तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी am upon mc, am upon mc which will be nearly equal to am will remain as such, और mc की जगह हम ले सकते हैं pc because P and M point are very close. Now substituting these values in equation number 2, तो इस equation number 2 में अगर ये values हम substitute करते हैं then it will be mu1 अल्फा और गामा की values, अल्फा है हमारे पास am upon po, am upon po प्लस गामा की वैल्यू है am अपॉन pc, तो गामा हुआ am अपॉन pc इज इक्वल टू ये mu2, सेकेंड वैल्यू इज mu2 एज इट इज, गामा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू am अपॉन pc माइनस बीटा है am अपॉन pi, am अपॉन pi। अब इस इक्वेशन में LHS RHS दोनों में am कॉमन लेकर के इसको कैंसल आउट करें, तो ये हमारे पास बचेगा mu1 अपॉन po प्लस mu1 अपॉन pc इज इक्वल टू mu2 अपॉन pc माइनस mu2 अपॉन pi। अब इसमें pc वाले दोनों टर्म, pc इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी के ये दो टर्म्स हैं, दोनों को कर दें आरएचएस पर और इसको ले आए एलएचएस, तो इस तरह से ये आ जाएगा mu1 अपॉन po प्लस mu2 अपॉन pi इज इक्वल टू, ये उधर ले जाएंगे आरएचएस, तो ये हमारे पास आ जाएगा mu2 माइनस mu1 अपॉन pc। दिस इज द मेन इक्वेशन। बस अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं और कुछ नहीं। यहां पर PO का वैल्यू अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ different distances, positive in the direction of incident rays and negative in the opposite direction of incident rays। तो इसलिए मेरे बच्चों यहां पर ये जो PO है, PO is the object distance is represented by U, image distance is expressed by V, and the radius of curvature is expressed by capital R। So this PO, what will be the value of PO? ये क्योंकि हमारे इंसिडेंट रे है लेफ्ट टू राइट, जबकि ये PO डिस्टेंस है राइट टू लेफ्ट, सो इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी माइनस U।
PO का वैल्यू लेंगे -u अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है PI दिस इज द इमेज डिस्टेंस। अब हम P से ये डिस्टेंस अगर इमेज की तरफ मेजर करेंगे, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, प्लस v रहेगा ये। इसी तरह से तीसरी डिस्टेंस है PC is the radius of curvature and it is again in the same direction of incident rays, so it will be again positive and it is plus r। ये वैल्यूज इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, therefore final equation will become mu1 upon minus u plus mu2 upon pi is v, तो upon v is equal to mu2 minus mu1 upon radius of curvature r। This is the final equation for the refraction of this type of through this type of spherical surface। और यहां पर देखिए, चाहे ये सरफेस कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, चाहे इमेज फॉर्मेशन रियल है या वर्चुअल, इन ऑल द केसेस दिस फाइनल इक्वेशन विल रिमेन सेम। इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आनी है। न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हमने यही इक्वेशन को यूज करना है। यहां पर बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि mu1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आउटर मीडियम, जबकि mu2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द इनर मीडियम व्हिच इज एनक्लोज्ड इन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दैट्स ऑल। अदरवाइज दिस इक्वेशन, नेचर ऑफ दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम इवन in case of virtual image formation। virtual image formation में भी इस डेरिवेशन में कोई खास चेंज नहीं आएगी, फाइनल इक्वेशन यही आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर रे डायग्राम में चेंज आएगी। अगर हमारा ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन है, मान लीजिए अगर हम इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन लें, तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए स्फेरिकल सरफेस पर ये था हमारा रियल इमेज। रियल इमेज के अलावा अगर हम ये वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन ले, तो देखिए वर्चुअल इमेज में क्या चेंज आएगी। वर्चुअल इमेज के लिए रिफ्रैक्टिंग सरफेस उसी तरह से कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारा ये। सपोज xy इज द एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस एज सच, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये इसका वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है उसी तरीके से पोल। यहां पर मान लीजिए ये हम ले ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो हमारा फर्स्ट रे था अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल रिमेन सेम एज सच, इट विल गो थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर अनडेविएटेड एज इट इज द नॉर्मल रे। और दूसरा रे हम कंसीडर करें, मान लीजिए ये ए पॉइंट, वही हम इसमें पॉइंट्स का नोमेनक्लेचर ले रहे हैं जो कि हमने इससे पहले वाले फिगर में लिया था। तो ए पॉइंट हमने लिया था ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसी तरीके से। और मान लीजिए ये हुआ नॉर्मल, सपोज एनसी इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ए। अब रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए अभी मैंने क्या बताया था कि जो इमेज है ये उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये mu1, ये mu2, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर हमने केस डिस्कस किया था, वही रेयर टू डेंसर मीडियम के थ्रू हम ये रिफ्रैक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पर मेन पॉइंट, लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रियल इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने इसको इतना बेंड किया था कि इसने प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं कट किया। अभी भी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए भी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी। लेकिन अब देखिए इसका एक्चुअल पाथ ये होगा, अब हम इसको ऐसे बेंड करेंगे, इतना बेंड। अगेन इसकी पोजीशन अगर इस तरह की है कि ये बेंड तो हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल, बट इट रिमेन्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, डायरेक्शन रिमेन्स अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इफ द रिफ्लेक्टेड रे रिमेन्स away from the principal axis, it will not intersect in actual, इसलिए रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अब इसी चीज को, इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर हम बैक पीछे एक्सटेंड करें, एक्सटेंड करने पर अब ये प्रिंसिपल एक्सिस को किसी पॉइंट
सपोज आई पॉइंट पर इसने कट किया, इसलिए आई पॉइंट पर जो इमेज फॉर्म हुई ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई। दिस इज वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। माइनर सा डिफरेंस है दोनों डायग्राम में। अगर रियल इमेज फॉर्मेशन है तो हम इस रिफ्रैक्टेड रे को इतना बेंड करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कट कर जाए, तो उस समय तो रियल इमेज फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये μ1 μ2 की वैल्यूज ऐसी हैं कि ये बैंड तो हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे बट इट रिमेन अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल नॉट इंटरसेक्ट इन एक्चुअल, तो इसलिए रियल इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। उस केस में इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बैक डायरेक्शन में पीछे कंटिन्यू करेंगे। पीछे कंटिन्यू करने पर ये आई पॉइंट पर मान लीजिए कट कर रही है, तो ये वर्चुअल इमेज है। बाकी एंगल उसी तरह से लेने हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल आई रहेगा। ये इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल वही रहेगा आर। जैसे हमने वहां पर नॉर्मल ड्रॉप किया था, यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये एम पॉइंट होगा। स्मॉल एपर्चर के लिए P और M बहुत ही क्लोज होंगे, इसलिए डिस्टेंस चाहे P से लिए जाए या M से लिए जाए अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। ऑब्जेक्ट पर बना हुआ एंगल अल्फा लेंगे, वही सेम। I पर बना हुआ एंगल बीटा लेंगे और C पर बना हुआ एंगल गामा लेंगे। तो इस तरीके से उसी तरह से सेम चलेंगे। अब देखिए हमारा कहां कहां चेंज आएंगे। जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, स्नेल्स लॉ को आपने उसी तरह से इंप्लीमेंट करना है कि μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। स्मॉल एंगल के लिए वही sin i इज इक्वल टू i हो जाएगा, sin r विल रिमेन r, तो इसलिए μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। तो इसलिए वो जो इक्वेशन नंबर 1 आया था हमारा μ1 i इज इक्वल टू μ2 r, उस इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन आया था हमारा μ1 i इज इक्वल टू μ2 r। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें नो चेंज, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इस इक्वेशन तक हमने डायग्राम को कहीं यूज ही नहीं किया, तो इसलिए ये इक्वेशन एज इट इज। डायग्राम हमारे यूज हो रहे हैं यहां से। अब अल्फा की वैल्यू देखने के लिए ये सॉरी आई की वैल्यू, आई जो है ये हम लेंगे ट्रायंगल AOC से उसी तरह से। तो AOC ट्रायंगल के लिए आई एंगल इज द एक्सटीरियर एंगल व्हिच विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। इंटीरियर अपोजिट एंगल वही अल्फा प्लस गामा। ये एक सिचुएशन एज सच, नो चेंज इन दिस वैल्यू ऑफ आई। आर की वैल्यू के लिए अब आर जो है वो कौन सा ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ACI, वही सेम ट्रायंगल है। देखिए ACI ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल आर, एक्सटीरियर एंगल आर विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी बीटा प्लस गामा। तो यहां पर माइनर सा चेंज आएगा। यहां पर हमारी चेंज क्या आएगी, ये यहां पर R विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, यानी ये जो हमने R की वैल्यू निकाली थी ये एज सच रहेगा। ये R की वैल्यू रह जाएगी, R विल बी इक्वल टू गामा प्लस बीटा, इन दोनों एंगल्स का ये सम आ जाएगा। उसी तरीके से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा एज सच, R की वैल्यू गामा प्लस बीटा, तो इसलिए ये साइन हो जाएगा बीटा। इसके अलावा अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू वही AM अपॉन MO, और MO अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा PO, तो ये एज इट इज, नो चेंज एट ऑल। इसी तरह से बीटा के लिए बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा, and tan beta will be equal to AM upon base is MI approximately हो जाएगी PI, because P and M point are very close to each other। इसी तरह से गामा is equal to tan gamma AM upon MC will be equal to PC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या चीज आएगा, यहां पर ये हो जाएगा प्लस, ये साइन आ जाएगा प्लस। AM पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट होने की वजह से अब हमारे पास क्या बचेगा, ये साइन आएगा पॉजिटिव। इस साइन पॉजिटिव आने के बाद अब यहां पर μ1 अपॉन PO,
ये चीज इधर उठा करके लाएंगे तो ये आएगा नेगेटिव साइन, तो माइनस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी, ये एज सच। अब आइए वैल्यूज पर, जो ये वैल्यू पी ओ है, पहली वैल्यू पी ओ इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस यू। PO will be equal to, according to the same sign convention. Sign convention is same. Either it is real image formation, virtual image formation, convex surface, concave surface for all. All the distances measured from pole, and their second is all distances measured in the opposite direction of incident rays are negative, and in the same direction of incident rays are positive. तो क्योंकि ये PO distance कैसे हम ले रहे हैं, इंसिडेंट रेज के अपोजिट, तो इसलिए माइनस यू। PI में अब चेंज आ जाएगा, PI is again in opposite direction of incident ray, so now it will be negative, it will become minus, जबकि ये PC will remain same plus R। अब देखिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये mu1 as it is, PO की वैल्यू माइनस यू, ये था हमारा माइनस mu2 और V की PI की वैल्यू माइनस V, तो माइनस एंड माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस एंड माइनस इट विल बिकम प्लस, तो इसलिए यहां पर बस केवल एक ये स्टेप आपका और बढ़ा, इस माइनस इंटू माइनस को प्लस करके लिखेंगे, दैट्स ऑल, दैट विल बी द फाइनल इक्वेशन। यानी ये हमारे पास आ जाएगा mu1 अपॉन माइनस यू प्लस mu2 अपॉन v इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 upon radius of curvature r. This is the final equation, and final equation is again same as we have derived for the real image formation. No change in this equation. तो इसलिए इस कॉन्वेक्स सरफेस पर चाहे लाइट जो है वो इस तरह से जा रही है, रेयर टू डेंसर हम ये केस ले रहे हैं, तो रेयर टू डेंसर में चाहे ये रियल इमेज फॉर्म करे या वर्चुअल इमेज, इन बोथ द केसेस द इक्वेशन इज सेम। और यही दो केस नहीं, बाकी और भी कोई केस लेंगे, सभी केसेस में चाहे वो कॉन्वेक्स सरफेस है या कॉनकेव, यहां पर जो इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी, देयर इज नो चेंज इन दिस फाइनल इक्वेशन, इट रिमेन्स सेम। रे डायग्राम ड्रॉ करने में भी कोई खास आपने फील किया होगा कि कोई प्रॉब्लम वाली चीज है ही नहीं, आपने केवल रिफ्रैक्शन के लॉज को फॉलो करना है। लाइट शुड गो फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड इफ इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स ऑल। अगर हम यहाँ पर ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो या ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पर रखा जाए रेयरर डेंसर मीडियम के अंदर, तो उसमें भी आपने उसी तरह से इन्हीं रूल्स को फॉलो करके डायग्राम बनाना है। और बाकी जो हम ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, इसमें कोई चेंज नहीं आती है, बस आपने डायग्राम में आई और आर के वैल्यूज देखने हैं अल्फा बीटा गामा की टर्म्स, दैट्स ऑल। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आएगा स्फेरिकल सरफेस concave shaped, that is image formation by the concaved surface, that will be discussed in the next video. Thank you very much to all. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वन एंड ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।